آپ بھی تھوڑا سا سائیکل کو آگے کر لیں. خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہو جائیں. ابھی کچھ دیر کے بعد ہم جو یہاں پہ حادثہ ہوا ہے ان کی یاد میں جو یہاں پہ لوگ گزر گئے ہیں, ہم یہاں پہ ان کے لواحقین کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہم تمام لوگوں سے درخواست کریں گے کہ ان کی یاد میں کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی جائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. یہاں پہ جو اس حادثے میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب اپنی جانوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہم ان کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ہم یہ عوام کو بتا دینا چاہتے ہیں, پوری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں پہ شہادت کا جام نوش کیا ہے, اس وطن کی بقا کے لیے جب بھی خون کی ضرورت پیش پائے گی, جب بھی یہاں پہ قربانیوں کی ضرورت پیش آئے گی, پاکستان کا ہر پاکستانی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اسی سلسلے میں پازیٹو پاکستان فاؤنڈیشن نے ان شہداء کی یاد میں یہاں پہ ان کی یاد میں یہاں پہ موم بتیاں جلانے کا اہتمام کیا ہے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے کچھ سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کے بھی تاثرات لینا چاہوں گا اور ان کو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو یہاں سے دوست احباب شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں, ان کے لواحقین کے لیے اور وطن عزیز کی بقا کے لیے جو ان کے جذبات ہیں ان کا اظہار کریں. میں سب سے پہلے اپنے نوجوان ساتھی پازیٹو پاکستان فاؤنڈیشن کے مارکیٹنگ مینیجر مسٹر سید دلاور حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. میں دلاور حسین زیدی جو اس سانے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ان کے خراج تحسین میں ایک نظم پیش کرنے لگا ہوں. بہتر ہے مٹی کا ایک چھوٹا سا دیا جلا دینا, اندھیرے کو مسلسل برا کہتے رہنے سے. بہتر ہے گپ اندھیرے میں سرے راہ ایک چھوٹی سی موم بتی جلا دینا. کسی سورج کا انتظار کرتے رہنے سے, کسی اجنبی مشعل برادر جلوس کی, کسی راہ تکتے رہنے سے خود غرضیوں کی ٹسی ہوئی عرض وطن کی. ہر اندھیری رات تاریک گلی اپنے سر سید اپنی عیدی کا انتظار کر رہی ہے. عرض پاکستان کی ہر شب گزشتہ بستی ہے. میرے بیٹوں بھائیوں بہنوں کہاں ہو دیا جلاؤ اپنے حصے کا. یہ وطن ہمارا ہے اور اسے ہم ہی سنواریں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہم اپنے بھائی کے ان جذبات کا احساس کرتے ہیں. اب میں درخواست کروں گا ہمارے ساتھ یہاں پہ پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے جناب جنرل سیکریٹری محترم حافظ شعیب صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور پازیٹو پاکستان کی جانب سے جو اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے احساسات پورے ملک کی عوام تک پہنچائیں. انشاءاللہ پاکستان کا ہر شہری پازیٹو شہری ہے اور انشاءاللہ جب ضرورت پیش آئے گی پازیٹو پاکستان تمام ایسے حادثوں اور سانحات میں اس کا احتجاج کرے گا اور انشاءاللہ تعالی جہاں ضرورت پیش آئے گی کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. جناب حافظ شعیب صاحب. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. زندگی کی قیمت کیا؟ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے پیارے ہم وطن
वतन साथियों, ये वतन पे जो अंधेरे मुसल्लत किए गए हैं, इसमें जो लोग शहीद हुए, चाहे वो आर्मी फोर्सेस के थे, सिविलियन थे, वो सब पाकिस्तानी थे, सब मुसलमान थे। मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर जवान पॉजिटिव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुत्तहिद है, मुत्तफिक है और पुरअज़म है। और इंशाअल्लाह हम लोग इस बात का अज़म करते हैं कि इन अंधेरों के मुकाबले में अपनी अपनी शमा जला के रोशनियाँ करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये वतन ज़रूर एक पुरअमन और एक पुरसकून वतन बनेगा, और ये हमेशा शाद आबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम हाफिज शोएब साहब के एहसासात का एहतराम करते हैं और दुश्मन की इन बुज़दिलाना कोशिशों का पुरजोर तरीके से हम लोग उसका मलाल करते हैं, और अब तमाम लवाहकीन को उनकी भरपूर साथ का हम यकीन दिलाते हैं। हमारे साथ हमारे एक और नौजवान साथी जो अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं, मोहतरम कामरान इस्माइल साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, जो पॉजिटिव पाकिस्तान के एक अहम कारकुन भी हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी यहाँ पे आएँ और अपने इजहार यकजहती करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने दुश्मनों को ये बात सुना देना चाहता हूँ कि हमारे लोग शहीद हुए हैं। हाँ, हमने खून दिया है, इस मुल्क को हासिल करने के लिए भी खून दिया है, इस मुल्क को बचाने के लिए भी हम खून देंगे, और इंशाअल्लाह जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी, इस मिट्टी से हम वफा करके दिखाएंगे, और हम बताएंगे इस मिट्टी ने हमें पैदा किया, इस मिट्टी ने हमें बड़ा किया, इस मिट्टी ने हमें क्या क्या नहीं दिया, और अगर वक्त आएगा तो हम अपनी जानें दे देंगे, अपने औलाद दे देंगे, अपना माल सब कुछ इस मिट्टी के नाम कर देंगे। और मैं इन दुश्मनों को बताना चाहता हूँ कि डरते क्यों हो, छुप के क्यों हमला करते हो, सामने आके लड़ो, फिर तुम्हें बताएं कि हम कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम डर के छुप के नहीं हमला करते, हम सामने आके मुकाबला करते हैं। आए हमारे सामने आके हमसे मुकाबला करें, छुप के बुज़दिलों की तरह, औरतों की तरह क्यों वार किया जाता है हमारे ऊपर। लेकिन एक बात याद रखो, ठीक है हम पे छुप के हमला करते हो तुम, लेकिन कब तक करोगे, आखिर कब तक करोगे। हमारी नौजवान नस्ल उठेगी, आएगी तुम्हारे सामने और तुम्हें बताएगी कि हम कौन है। और मैं अपने नौजवानों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कल के थाने में शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला ने, मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह ताला ने सबकी रूहों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दी होगी। उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश कर दी होगी। लेकिन अब सोचने की बात हमारी है कि हमने क्या करना है, कि हमने चुप करके बैठे रहना है, कि हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखते रहना है, कि हमने बम दबा के होते हुए देखते रहना है। नहीं, हम अपने मुल्क को बचाएंगे, अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देंगे और उठेंगे और मिलकर चलेंगे। लड़ना नहीं, फसाद नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी, लेकिन अपने ज़मीर को जगाना है, हमने उठना है और हमने करना है। पॉजिटिव पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यकीनन इन शहीदों का खून रंग लाएगा, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक दफा फिर सफाए हस्ती पे सबसे आगे नंबर 1 कौम बन के नमूदार होगा। ये जो दुश्मन हमारी सफ़ों में दरारें डालने के ख्वाब लेके आए हैं, इंशाअल्लाह अपने नाकाम इरादों के साथ यहाँ से दलीलों पार होके निकलेंगे, और ये वतन हमने बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे। पॉजिटिव पाकिस्तान का हर नुमाइंदा मुल्क के कोने कोने में जाके इस चीज़ का अहद करता है कि जब तक हमें कतरा आखिरी कतरा भी हमारे जिस्मों में मौजूद है, हम इस धरती के लिए उस कतरे को बहाने से कोई दरेक नहीं करेंगे। तमाम लवाहकीन को हम ये पैगाम देते हैं कि उनके साथियों का, उनके अजीज़ों अकारिब का खून रायगा नहीं गया। इंशाअल्लाह ताला अगर आप अपने दिलों में झांक के देखें, उनकी रूहों की तरफ देखें, इंशाअल्लाह वो जन्नतुल फिरदौस में मुस्कुरा रही होंगी। आज वाकई इस बात की जो मेरे दोस्त ने कहा, उसी चीज़ के अहद को दोहराने की ज़रूरत है। हमें उनकी जानों को कदर की नज़र से देखना होगा, उनके नजराने को रायगा नहीं जाने देना होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा इस तकीब में हमारे मोहतरम साथी पॉजिटिव पाकिस्तान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब आबिद इकबाल खारी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके पे वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक शेर जी इनके सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कल के वाक़या के हवाले से मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा। खून शहीदाने उम्मत का, खून शहीदाने उम्मत का है कम नजर आएगा, कब क्या था कि अब जाएगा। हर शहादत तेरे देखते देखते फूल फल लाएगी, फूल फल जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बात अब रोजे रोशन की तरह अया हो गई है कि इन धमाकों के पीछे, इस दहशतगर्दी के इन वाक़यात के पीछे CIA का हाथ है, ब्लैक वाटर का हाथ है। और हम इन अमरीकी कुत्तों को ये बता देना चाहते हैं कि अभी इस पाकिस्तान के लोग सोए नहीं हैं। अभी इनकी रगों में मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद और टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है। और हम तुम्हारा पीछा करेंगे। और तुम जो इस बाग को उजाड़ना चाहते हो, तुम ये जान लो कि अभी इस बाग के जो पंछी हैं वो अपनी चोंचों में कंकरियां थामना जानते हैं। अभी इस बाग की जो बेलें हैं वो जंजीरों में ढल सकती हैं। और अभी इस बाग के जो कांटे हैं वो उनकी नोकें कुंद नहीं हुई है। और इंशाल्लाह तुम ये जो अमेरिकन एम्बेसी में अपने बैंकर तामीर कर रहे हो, ये हम तुम्हारे लिए तुम्हारी कब्रें बना देंगे और तुम यहाँ से कभी वापस नहीं लौट सकोगे। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद। और मैं अपने इन बगैरत हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। मैं इस बगैरत सरदारी को और मैं इस बगैरत वजीर दाखिला रहमान मलिक को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ। और अगर यहाँ एजेंसियों के लोग मौजूद हैं तो ये बात नोट करें कि पाकिस्तान के ये नौजवान इस बगैरत वजीर आजम को भी, इस कठपुतली वजीर आजम को भी ये पैगाम देता है कि अगर तुम्हारी गैरत ना जागी तो हम तुम्हें घसीटेंगे, हम तुम्हें सड़कों पे लाएंगे, हम तुम्हें गधों पे बिठाएंगे, हम तुम्हें चूड़ियां पहनाएंगे। और अगर तुमने इन अमेरिकी कुत्तों की इस गुलामी से तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हारा ये इक़्तिदार बाकी नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकाने की। अगर ये मुलव्वस ना होते तो मुखबरी करते, ये सब जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारे सहाफ़ी भाई ये बात आश्कार कर चुके हैं कि ब्लैक वाटर का सेंटर रवात इंडस्ट्रियल एस्टेट इस्लामाबाद में कार एंड क्राफ्ट ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कायम है। हमारे सहाफ़ी ये बात आश्कार कर चुके हैं कि ब्लैक वाटर का एक सेंटर 12 को से 8 किलोमीटर बेगोवाल के गांव में गुलशन जहीर के नाम से जो एक रेस्ट हाउस है वहाँ काम कर रहा है। और हमारे सारे साफी भाई ये खबरें दे चुके हैं, लेकिन आखिर हमारे हुक्मरानों पे क्यों जू नहीं रेंगती और क्यों वो अभी भी ये रट लगाते हैं कि यहाँ कोई ब्लैक वाटर का जो है वो इसका वजूद नहीं है। क्या ये हमें अंधा समझते हैं, हमें गूंगा समझते हैं, हमें बेरा समझते हैं, हमें बेवकूफ समझते हैं? लेकिन हकीकत ये है, मैं तुम्हें भी और इन दुश्मनों को भी बता देना चाहता हूँ कि ये नौजवान देख लो, हमारे तो बच्चों के बारे में शायर कहता है कि हमारे शीर खारों से डरो दुश्मन, कि जब ये दूध छोड़ेंगे तो तुम दहशतज़दा रातों में सोना छोड़ जाओगे। ये बच्चे खानदानी हैं, अबोजद की रवायत का बड़ा वजदान रखते हैं, अना को पूछते हैं, खून पर ईमान रखते हैं। और हम ये पैगाम देते हैं कि इंशाल्लाह तुम चाहे दुनिया ने देख लिया यहाँ जल्जले आए, दुनिया ने देखा यहाँ पे तूफान आए, दुनिया ने देखा यहाँ दहशतगर्दी हुई, यहाँ ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन तुम हमारी मुस्कुराहटें और तुम हमारे जज्बे तुमने देखे कि जो मुतज़लज़ल नहीं हुए। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह
हर तरह के हालात में हर तरह की कुदरती आफत से भी मुकाबला किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कली कली को संवार देंगे, रविश रविश को निखार देंगे। अगर ये मट्टी तलब करेगी तो खून दिल बार बार देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने मोहतरम कायद आबिद इकबाल खारी के जज्बात का एहतराम करते हैं। उनके इस पैगाम के बाद मैं नहीं समझता कि मजीद कुछ कहने की जरूरत है। ये बात हर पाकिस्तानी पे आज आया है कि मुल्क का कोना कोना दुश्मन की जद में है, लेकिन उसे जान लेना चाहिए। ये 7 करोड़ पाकिस्तानी तो है ही है, लेकिन ये 7 करोड़ मुसलमान भी है, ये 7 करोड़ टीपू सुल्तान भी है, ये 7 करोड़ खालिद बिन वलीद भी है। इंशाअल्लाह मुझे कसम है, मोहम्मद अल्लाह ताला के नबी की कसम है, मुझे इंशाअल्लाह जब भी जरूरत पेश आएगी इस धरती के लिए हम अपनी जानें निसार करने से कहीं भी चूक नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब चौधरी जाहिद इकराम साहब को, जिनको जो पाकिस्तान पॉजिटिव पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, वो यहाँ पे जो लवाहकीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। इससे पहले बातचीत करने वाले असहाब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ है काबिल मुकम्मल है। हम ये समझते हैं कि दुश्मन हमारी उम्मत को, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए पूरी दुनिया में जाल बिछा रहा है। जिसमें से एक ये भी है कि मुख्तलिफ मुकामात पर धमाके करके इस कौम को बुज़दिल बनाया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस दुश्मन को ये पता नहीं है कि ये कौम बरसों से इन हालात से गुजर चुकी है और ये कभी भी बुज़दिल नहीं थी और ना ये बुज़दिल है। ये डट कर मुकाबला करेगी और आखिर वक्त तक मुकाबला करेगी। और मुझे 100% उम्मीद है कि आखिरकार इस्लाम और तहजीब इस्लामी दुनिया में कामयाब होगी और मगरबी तहजीब और मगरब हमारे मुकाबले में शिकस्त खाएंगे और हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का वो दीन जो बतौर आखिरी नबी वो हमारे पास लाए थे, हम उनकी तरफ से पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे और ये दावा करते हैं कि दुश्मन आखिरकार शिकस्त खाएगा। मैं यहाँ पर वफात वाले लोगों को शहीद कहता हूँ और जब शहीद कहता हूँ तो मेरा अपना अंदाजा है कि उनके लवाहकीन शहादत पाने वालों के लिए फख्र करेंगे, गरूर करेंगे। गमज़दा होने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला इसका जज़ा आपको भी देगा, उनको भी देगा। उनको जन्नत उसने दे दी है और जो जख्मी हुए हैं लोग, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे और उनके दुख दर्द में हम सब शरीक हैं जनाब। हमारी तरफ से उनके लिए दुआएं खैर है। और मैं ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव पाकिस्तान ने जो तहरीक शुरू की है वो वाज़ेह तौर पे ये है कि हम पाकिस्तान में पॉजिटिव तहरीक को मुस्तमय करेंगे और आने वाले इस तूफान को जो हमें बिखरना चाहता है, जो हमें तबाह करना चाहता है, हम उनका मुकाबला करेंगे और उनको शिकस्त देंगे और उनको घरों से भी निकाल कर पकड़ कर फांसियां लगाएंगे। और ये मैं आपसे पाकिस्तान जिंदाबाद, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे दरमियान जनाब क्लब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अंजुम सलीमी साहब भी मौजूद हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए जो शहदा यहाँ पे
शहीद हुए हैं हमारे साथ शामिल हैं। मैं तमाम यहाँ पे हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे तमाम जो शोहदा हैं उनके लवाहीन को भी जो अगर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा आइए हमारे साथ इस दुआ में शामिल हो जाइए। हम तमाम शोहदा के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तान की बका के लिए दुआ करते हैं। पूरी उम्मत हमारे साथ शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। ए अल्लाह ताला जो कल के हादसे में हमसे बिछड़ गए हैं, उनकी रूहों को तो आपने जन्नतुल फिरदौस में यकीनन पहुंचा दिया होगा। ए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें अपने सुलहा के नक्शे कदम पर चलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जमा होने की तौफीक अता फरमा। उनकी मैयत में हम तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम उन तमाम की बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जिन लोगों ने यहाँ पे जो भी कलाम पढ़ा, इस तकरीब के इब्तिदा में जो कलाम पाक पढ़ा गया उसको हम पेश करते हैं, उनका नजराना उनकी खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा। ए अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। ए अल्लाह ताला जो यहाँ से इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह ताला जिनकी आपने बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये कैमरा सारे जो वो स्क्रीन पे रख दें, ठीक है, ताकि ये जो जलती रहेंगी। ये भी यार ये पकड़िए। आ जाए यार बिलाल और नकी आप भी आ जाए, एक शाम आ जाए, आ जाए अभी सब आए तस्वीर बनाओ। दिलावर ये तस्वीर बनाओ। कर दे क्यों वो